start nuclei. Okay. So first of all, as I told in my last classes, that 99.9% of mass concentrated towards the nucleus. Nucleus के पास एटम का कितना मास होता है? 99.9%. And after that, whatever the remaining components, clear? If you can minus it from 100%, you will get the percentage. जो remaining component है उनका क्या percentage है? मतलब this one is the most important for any atom. Clear? This one known as the central core of the atom. Rutherford ने ये सारी चीजें बताई थी related to the nuclei. That they have completed the alpha scattering experiment, and I have completed it. So what we have to do today? We have to start nuclei. और happiness इस बात की है कि after nuclei we have only one chapter, that one is semiconductor. Clear? So we are free to do it. So if you can talk about the atom, modern concept of atom, it consists of electron, proton, neutron. Clear? It consists of electron, proton, and neutron. Clear? Electron, proton, and neutron. Clear? So when it is consists of electron, proton, and neutron. So in atoms, if you can talk about electron, proton, neutron, but what the arrangement of electron, proton, and neutron? Clear? Arrangements are important. Clear? What the arrangements are for the electron, proton, and neutron? There, electron, proton, and neutron. What the arrangement of electron, what the arrangement of proton, and what the arrangement of neutron? We have to complete it. How we are arranging it in atom? Clear? So, if you can go for the atomic nucleus is very small in size. I told that it's in central core. Clear? And its size is very much smaller than atom. तो इसका size है nucleus का एटम से बहुत छोटा होता है, स्मॉलर दैन एटम. तो अगर एटम से बहुत छोटा होता है लेकिन 99.9% जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस एटम से छोटा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस जो है एटम का एक पार्ट है. इज इट क्लियर? इफ यू कैन टॉक अबाउट द लॉन्गेस्ट बोन, अपनी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन की बात करिए तो वे कभी भी आपकी बॉडी की साइज से क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि वे आपकी बॉडी का क्या है? कॉम्पोनेंट है. क्लियर? So whenever you are talking about the atom, then you are talking about the radiations, provides very useful information about the atomic nucleus. अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इससे रेडिएशंस जो बाहर होते हैं आते हैं न्यूक्लियस से, ये आपका जो इसको लेकर जो हमने स्टडी की इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताता है, बहुत इंटरेस्टिंग. So properties of nuclei के बारे में जब हम पढ़ेंगे इसमें हमें properties इस चैप्टर में हमें in this chapter we have to study about the introduction of nucleus, properties of nuclei, stability, charge, mass. Clear? जो phenomenon associated है radioactivity के phenomenon associated है, stability, nuclear fusion, ये सारी जो चीजें इसमें क्या है included. nuclear fusion जो आपने पढ़ा है इस साल में nuclear क्या होता है? fusion होता है. Clear? तो adding of nuclei, separation of nucleus, तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, if this kind of things are going on, clear? So if this kind of things are going on, we have to complete it in this chapter. ये जितनी भी मतलब न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ आप पढ़ लेते हैं, you will complete it all things studied, or maybe one more lecture needed, so tomorrow. तो सबसे पहले composition of nucleus की बात करते हैं. अब आपने न्यूक्लियस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, इसका डिस्कवरी आपने पढ़ लिया, बट यू डोंट नो अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. क्लियर? जब आप कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं, दैट व्हाट यू आर रीडिंग, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. रदरफोर्ड कंप्लीटेड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की 1911. क्लियर? तो
उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट हुए किसके, एटम के, और बहुत सारे मेथड्स लगाए गए, डिसइंटीग्रेशन मेथड, बहुत सारी चीजें की गई कि ये है इसके अंदर, ये है एटम के अंदर, ऐसे रिवॉल्व करता है, ऐसे रोटेट करता है, ये सारी चीजें उन्होंने कंप्लीट की। लास्ट में सारी थियरीज का एजम्पशंस किया, एजम्पशंस करके बोर ने पोस्टुलेट्स दिया, डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेनेशन दिया ऑर्बिट को लेकर, और ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। लास्ट में उन्होंने कहा कि कुछ चीजें तो एक्सेप्शनल हमेशा रहेंगी, लेकिन ये लास्ट स्ट्रक्चर है, मॉडर्न स्ट्रक्चर है किसका, एटम का। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिया, दैट the speculation were based on the fact that radioactive disintegration showed the nucleus emitted alpha particle। रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वह अल्फा पार्टिकल एमिशन जब कर, अल्फा बीटा एंड गामा, जब अल्फा पार्टिकल एमिशन का मतलब कि हीलियम न्यूक्लियाई की बात करते हैं, बीटा पार्टिकल का मतलब निगेटिव की बात करें, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन। किसी भी रेडियोएक्टिव से क्या निकलता है, अल्फा बीटा और गामा निकलता है। अल्फा की जब आप बात करेंगे तो हीलियम न्यूक्लियाई की बात करें, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। In the beta, if you are talking, that you are talking about electron, clear? And if you are talking about gamma, that one is high energy electromagnetic rays, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन के बारे में हमने कुछ नहीं बताया। हाई एटॉमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बोल दिया, क्योंकि गामा जो है ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, क्लियर? सो इसके बाद बहुत सारी हाइपोथेसिस, बहुत सारी थियरीज दी गई, राइट? बहुत सारी, उसमें से एक जो थियरी है, जो ये सारी थियरी क्या बताती थी, ऑल दिस थियरी आर telling us the structure of atom. All these theories are telling us the structure of atom. When all these theories are telling the structure of the atom, so if you can go for proton, if you can go for proton electron hypothesis, clear? Proton electron hypothesis, and then you can talking about proton neutron hypothesis, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ये दोनों हमें पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। अब इतनी सारी चीजें अल्फा बीटा गामा के बारे में लोगों ने रेडियोएक्टिव में बताया। उसके बाद उन्होंने एक थियरीज दी, थियरीज हाइपोथेसिस दिया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्क्राइब करेगा, नहीं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्या करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्क्राइब करेगा। अब हमें तो दोनों पढ़ना है, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग द हिस्ट्री। At last, when we are studying the history that we are getting, then we are talking about the hypothesis. इसको भी पढ़ेंगे, and then you can study about this one. As the name suggests that you are talking about proton electron. अभी तक हमें यही पता है, या अभी अगर आपको देखा जाए तो प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। So जो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया, whatever the discovery completed by the Rutherford, the presence of positively charged, clear? उन्होंने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। उन्होंने प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज की बात की, और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला, प्रोटॉन को। इज इट क्लियर? दैट पार्टिकल सिंपली नोन एज प्रोटॉन। इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने उसको क्या बोला, प्रोटॉन बोला। और उसके बाद जो बचा, जो रिवॉल्व कर रहा है सराउंडिंग में, दैट वन इज सिंपली नोन एज इलेक्ट्रॉन। जो रिवॉल्व कर रहा है उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला, क्लियर? नाउ इट इज फाउंड दैट mass of the proton, so when you can talk about the mass of the proton is equal to the mass of hydrogen nucleus. जो mass of proton है, that one mass of proton is simply equal to the mass of hydrogen atom. That one is, you are talking about hydrogen nucleus. हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के मास की क्या है, इक्वल। mass of proton जो है, that one is simply equal to the mass of hydrogen nucleus. Clear? Nucleus. That is, when you can talk about the charge, that one is positively charged, that one is talking about plus E. Is it clear? That one you are talking about plus E. Clear? That is proton. This proton has a positive charge, and which is equal to the mass of hydrogen nucleus. And then when you can talk about the positive charge of nucleus, clear? When you can talk about the positive charge of a nucleus, positive charge of a nucleus is equal to the negative charge of revolving electron. Clear? So when you can talk about the charges, clear? उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो प्रोटॉन का चार्ज है, बस साइन का डिफरेंस है। There is a difference of only sign. One is negative and another one is positive. One is negative and another one is positive. और ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। They are cancelling each other. Negative is cancelling the positive.
बिकॉज दोनों पे चार्ज क्या इक्विवेलेंट है, बोथ हैव द सेम चार्ज, ओनली इफ यू हैव अ पॉजिटिव Q1 अदर हैव अ नेगेटिव Q1, क्लियर? सो दिस विल कैंसल दिस वन, क्लियर? द टोटल चार्ज की बात होगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। व्हेन दे कैंसल ईच अदर यू विल गेट एटम विल बी न्यूट्रल। एटम क्या हो जाएगा, अगर चार्ज ही कैंसिल हो जाएगा तो टोटल चार्ज विल बी जीरो, व्हेन टोटल चार्ज विल बी जीरो। But when you can talk about the mass of the electron and mass of the proton, both have a difference. जो mass of electron है वह negligible है in compare to mass of proton. Proton के mass के compare में इस theory के according हम इसको क्या ले रहे हैं, negligible ले रहे हैं, we are taking it negligible, मतलब बहुत छोटा, too much is clear? So when you can talk about this theory on this basis, on these facts, the following proton electron hypothesis was put forward and the structure of atom was completed. उन्होंने कहा कि अब इस पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस से, सो न्यूक्लियस ऑफ एटम को अगर हम डिसाइड करें, इफ यू कैन डिफाइन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, that one is atom of mass A and atomic number Z is made up of a proton and electron, clear? जब भी हम बात करते हैं तो A minus Z, A minus Z का मतलब क्या होता है, clear? When you are talking about A is what? Mass number A, clear? Atomic, and Z is atomic number, clear? You are talking about Z, Z is atomic number. जब भी आप बात करते हैं X को एलिमेंट कहते हैं Z X A, ऐसे आपने रखेंगे। This one is atomic mass, that one is mass number, that one you are talking about Z, atomic number, clear? Atomic number. और जब दोनों का डिफरेंस लेते हैं A minus Z, and you can take A minus Z, clear? When you are talking about A minus Z, while Z electrons are revolving around the nucleus. Z क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप निकल जाता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे निकलेगा, A minus Z आप करेंगे, you will get the positive charges, clear? तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस एक सेटिस्फैक्शन हमें दिया जो करेक्ट स्ट्रक्चर को बता रहा था, लेकिन हमने इस पे स्टैम्प नहीं लगाया दैट इट इज टेलिंग द राइट थिंग और राइट समथिंग इज रिमेनिंग और नॉट, क्लियर? अभी हमारे दिमाग में कुछ चल रहा था कि कुछ चीजें रिमेनिंग रह गई, जो आपने अल्फा बीटा तो क्या, लेकिन जो गामा के बारे में हमने कहा उसको लेके अभी हमारे माइंड में क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है या उस टाइम पे चल रहा है, क्लियर? तो इन्होंने ये जो मॉडल है एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो 4 प्रोटॉन्स को कंपोज करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो ये जो हमने सारा हाइपोथेसिस निकाला कि जब अल्फा की बात करेंगे 4 प्रोटॉन्स की बात करेंगे, बीटा की बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल गामा रेज वर एमिटेड फ्रॉम एन एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट इन द मैनर एनालॉगस। तो गामा के बारे में जो हमने दिया, जो एक एक्साइटेड स्टेट आएगा वहां से एमिशन ऑफ रेडिएशन होगा, एक्साइटेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम की बात करेंगे, तब हम किसकी बात करेंगे, गामा की बात करेंगे, क्लियर? तो बहुत सारी चीजें अभी रह गई थी गामा रेज को लेकर, क्लियर? तो यहाँ पर जो हमने जो मोस्टली रेडिएशंस को लेकर भी क्लियरेंस दिया, दैट वन इज अल्फा और बीटा को लेकर दिया। अभी हमारा गामा को लेकर क्या हो गया, अभी हमारे पास कुछ चीजें बच गई, क्लियर? अब इसमें ड्रॉबैक्स देखते हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस हाइपोथेसिस और दिस थियरी, क्लियर? इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जो हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल की बात की, ये जो मॉडल की बात की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की बात की, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस था, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर 10 पावर माइनस 15 मीटर की जब हम बात करेंगे, व्हेन यू कैन टॉक अबाउट 10 पावर माइनस 15 मीटर, तो अगर इलेक्ट्रॉन इतने स्मॉल स्पेस में जब हम बात करेंगे उसकी जो एनर्जी है शुड बी द ऑर्डर ऑफ 100 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट एक्सपेरिमेंट शोज दैट एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस इज एट 4 MeV, दिस शोज इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हो गया, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इनसाइड है, तो 100 MeV का अगर एनर्जी है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो इन्होंने कहा कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है 10 पावर माइनस 15 मीटर का, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 पावर माइनस 15 मीटर का है, और जो इलेक्ट्रॉन है वे एक स्मॉल स्पेस में कन्फाइंड हुआ है, तो उसके जो एनर्जी होगा वह 100 MeV के इक्वल होना चाहिए, शुड बी 100 MeV। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है ये शो कर रहा है
जो बीटा पार्टिकल्स, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, दैट व्हेन यू कैन टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस से निकलेंगे, दैट वन इज 4 MeV के बराबर है, 4 MeV के ऊपर है। ये कैसे हो सकता है कि इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन विल नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स कांट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? Now we have, it has been found experimentally that values of magnetic moment of nuclei are much smaller than magnetic moments of electron. जब आप बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियाई का, वे बहुत स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, बहुत स्मॉलर है इसका, न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। यह भी शो करता है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। इज इट क्लियर? And if the assumption the presence of electron in the nucleus, then the calculated value of angular momentum of nucleus is different from its experimental value. अगर हम assumption कर भी लेते हैं that electron is existing inside the nucleus, but whatever the value you are getting angular of the angular momentum experimentally and the theoretically both are different. आपको जो डिफरेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो डिफरेंट मिल रही है। ये भी शो कर रहा है कि जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। क्लियर? तो ये जितने भी ड्रॉबैक्स थे, व्हाट एवर द ड्रॉबैक्स, द अबाउट ड्रॉबैक्स वर स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर रिजेक्टिंग द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? अब ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्लियर? मैंने पहले ही बोला कि मैं ये नहीं कह सकता कि इस पे स्टैंप लगा दो ये राइट है, कुछ चीजें इसमें सही बताई, कुछ चीजें इसकी ड्रॉबैक जो बता दी। इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम इन अ क्लास एंड यू आर इन अ क्लास, और ये भी देख कि मैं इस क्लास, मेरा ऑरा जो इस क्लास से बड़ा है, और ये भी दे रहा है कि मैं इसमें एग्जिस्ट, अगर मेरा ऑरा इस क्लास से बड़ा है तो मैं यहाँ एग्जिस्ट कैसे करूँ? यही इलेक्ट्रॉन के साथ सारी चीजें रिवर्स करके आ रही थी, जो बता रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ यू हैव अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। अब उन्होंने दूसरी जो थियरी दी, दैट वाज द थियरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। क्लियर? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। Now we have to study about proton neutron hypothesis. A proton neutron hypothesis is inside also an story, like a story. You have to commonly learn something, some points only, and rest is the story. That अभी क्या है कि ये जितने भी drawbacks हैं, whatever the drawbacks you all have completed in the first model, according to the first theory, उन सबको overcome करने के लिए इन्होंने एक theory बनाई, proton neutron hypothesis. अब कहीं ना कहीं ये हो गया कि कोई ना कोई और पार्टिकल है जो एग्जिस्ट कर रहा है, किसके साथ, न्यूक्लियस में, प्रोटॉन के साथ। अब ये चीज आ गई। नाउ रदरफोर्ड ने फिर एक बार इंटरप्शन किया, इंटरफेयर किया इस थियरी में 1920 एंड इफ यू कैन टॉक 1947 and here we have 1947, only 27 years old, 27 साल पहले की बात, इंडिपेंडेंस। यानी कि जो हमने फिजिक्स पढ़ा था वह सब क्या पढ़ा था हमने, क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा था, और मोस्टली बुक्स चेंज हो गई क्योंकि 1920 में उन्होंने इंटरफेयर किया। उन्होंने इंटरफेयर करके बताया, उनका इंटरफेरेंस उसमें उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और मुझे लगता है न्यूक्लियस के अंदर कोई और पार्टिकल है, और उन्होंने उस पार्टिकल को न्यूट्रल पार्टिकल का नेम दिया, that nucleus should contain a neutral particle of approximately the same mass as the proton. रदरफोर्ड का सजेशन था 1920 में, कोई ना कोई न्यूट्रल पार्टिकल है जो उसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, जिसका मास प्रोटॉन के इक्वल है, the mass is equal to the proton। लेकिन जो ये सर्च था, बस उन्होंने कह दिया कि एक पार्टिकल, लेकिन कौन सा पार्टिकल है कोई नहीं जानता।
अब उसके लिए उसने डिस्कवरी उनके स्टूडेंट्स और वगैरह ने लोगों ने शुरू कर, जब ये थियरी आ गई, जैसे किसी ने कह दिया कि आप इस रूम में कोई और भी है, पहले तो ये रूम वैकेंट है, सडनली समवन वॉइस और नॉइस इज कमिंग, सडनली आपने फोन किया यार इस रूम में कोई और भी, अब आपका काम वहां से खत्म। अब जो लोग हैं वे आके सर्च वारंट के साथ सर्च करें, एक एक पेज एक एक चीजें सर्च, दीवार भी तोड़ के सर्च करें। तो वही यहाँ वहां पर साइंटिस्ट ने ये कहा कि दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि अगर ये कहा जाए कि इन्होंने कहा कि इन्होंने ही न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, अब यही करें 1920 में आके 8-10 साल बाद कि कुछ ना कुछ है। The search of such a particle was made difficult because no sensitive devices were available to detect neutral particle. और ये सर्च बहुत डिफिकल्ट हो गया क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट था कि कोई भी डिवाइस नहीं थी जो डिटेक्ट कर सके न्यूट्रॉन को, जो आजकल तो है, उस टाइम में नहीं था। 1947 से 1927 इयर्स गैप इंडिपेंडेंस का। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका 150 साल पहले आप इंडिया से पहले इंडिपेंडेंस पाया था। अमेरिका इंडिया का जो इस टाइम पे दिल्ली है, अमेरिका का न्यूयॉर्क 200 साल पहले वैसा था। आज इंडिया का जो दिल्ली 200 साल पहले ही वैसा था। मतलब वहाँ थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कवरी किया, और डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से न्यूयॉर्क को लाइट से डेकोरेट कर दिया बल्ब से। 200 साल पहले जो आज इंडिया है, इंडिया का दिल्ली है, वे वहाँ पर, मतलब आप कितने पीछे हैं आज आप समझ लीजिए अमेरिका कंपेरिजन टू अमेरिका। इसी वजह से व्हाट्सएप फेसबुक सारी चीज़ें वहाँ पर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही ये चीज़। और एक चीज़ और, हमारे कल्चर सबसे ज़्यादा रिस्क है। हमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी लेकिन वैदिक फॉर्म में बताई गई। हमारी जितनी भी चीज़ें थी पढ़ने लिखने के मामले में और डिस्कवरी के मामले में इंडिया सबसे आगे था, अमेरिका को भी पीछे कर देता है सबसे। लेकिन मुगलों ने क्या किया, इसकी यूनिवर्सिटीज गिरा दी, इस पे लोग हुकूमत करते गए और यूनिवर्सिटी तोड़ते गए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंडिया में थी, नालंदा भी उसमें एक था, चाणक्य, ऐसे कितने भी यूनिवर्सिटीज थी 12-13 जो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। अगर ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन कल्चर में टेम्पल्स बनाए गए, हिंदूज ने जो टेम्पल्स बनाए हैं, जो स्कल्पचर्स बनाए हैं टेम्पल्स के, वे बिना इंजीनियरिंग के क्या बनता नहीं बनता। जो महल बनाए गए इतने बड़े बड़े, जो अमेरिका भी आज नहीं बना सकता, इंडिया आज खुद नहीं बना सकता, इंडिया के इंजीनियर्स नहीं बना सकते। वे चीज़ें उस टाइम पर बनाएगी, क्यों? क्योंकि एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा था। बट आफ्टर सम टाइम वे चीज़ें क्या हो गई, जैसे अभी आप यहाँ पर है, सारे स्कूल तोड़ दिए जाए, किसी की ऐसी जैसे अफगानिस्तान में हुआ, सारी चीज़ें। और उन्होंने हिस्ट्री की जो बुक थी उसमें बोला कि वे लिखो जो मैं चाहता हूँ। जैसे मैं अपनी हिस्ट्री की बुक लिखूँ, मैं बोलूँ कि लिखो मेरे बारे में कि मैं बहुत अच्छा राजा था, तो डर के बारे में उसने लिखा हिस्ट्री में कि आप बहुत अच्छे राजा थे, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने, लेकिन ये नहीं किया कि आपने बिल्डिंग्स तोड़वाई हिंदुओं की, ये कभी नहीं लिखा। जो हिस्ट्री लिखी गई, पहले वाली जो हिस्ट्री थी उसको फाड़ दिया गया और नई हिस्ट्री लिखी। इस वजह से हम इतना पीछे रहे। तो चैडविक जो थे, उनको अचानक से लगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया 1932। चैडविक ने 1932 में एक्सपेरिमेंट किया और डेमोन्स्ट्रेट किया न्यूट्रल पार्टिकल का एक्सिस्टेंस। Chadwick have demonstrated the existence of neutral particles in the nucleus, और उसको जो नेम दिया, as particle was neutral, so name was given neutron। नेम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन। नेम was given neutron। 1932। Is it clear? Now what happens after this? उन्होंने कहा कि जब ये अनचार्ज पार्टिकल है, this particle is an uncharged particle, जिसका मास जो है प्रोटॉन के क्या है, इक्वल। अब यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस या मॉडल यहीं से एग्जिस्टेंस में आ गया, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास था वो इक्वल था, लेकिन जो चार्जेस थे वो डिफरेंट थे, पॉजिटिव था और एक अनचार्ज न्यूट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू द प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को क्या करता है, कंटेन करता है।
The number of proton in the nucleus is Z and the number of proton plus number of neutron is A. A की जब हम बात करेंगे मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे, दोनों की एडिशन। जब हम Z की बात करेंगे दैट यू आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात। Z का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट की बात करेंगे। Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। इज इट क्लियर? Z आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन की। इज इट क्लियर? When you can talk about A minus Z, you will get the number of proton which is equal to the number of neutron. यहाँ से भी ये आपने बहुत बार पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए होंगे। That proton is giving the positive charge and the neutron if you are talking about that one is neutral. They get together हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ न्यूक्लियस के अंदर दिख रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, दिख रहा है कि मैं प्रोटॉन हूं और मैं क्या हूं? न्यूट्रॉन। आप मुझे देखो तो हम दोनों एक साथ हैं, लेकिन एक अनचार्ज है और एक चार्ज है, वन इज चार्ज एंड अदर वन इज एक्सेप्ट हाइड्रोजन। व्हेन यू कैन टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, द न्यूक्लियाई ऑफ लाइटर एलिमेंट्स हैव इक्वल और नियरली इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़ के लगभग लाइटर न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल है। अगर हैवियर एलिमेंट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हैवियर एलिमेंट हैवी न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़ा कम हो जाता है। 20% ज्यादा हो जाएगा और ये 20% कम हो जाएगा। तो कभी भी बात करेंगे, जैसे कि एग्जांपल है आयरन का लेवल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है नियरली 20% ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द प्रोटॉन। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन से 20% ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। कहाँ पे है? जब हम किसकी बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन। क्लियर? नाउ वी कैन टॉक अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो? तो ये क्लियर तो हो गया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने डिस्कवरी कर दिया, 1932 में सब कुछ कर दिया, मॉडल दे दिया। ये एग्जिस्ट कहाँ कर है वो भी हमने बता दिया, ऑल द थिंग्स कंप्लीट। नाउ वी विल टॉक अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियस सेपरेटली। अब एटॉमिक न्यूक्लियस की हम बात करें, जिसमें ये पूरा क्या है? इफ यू कैन टॉक अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियस, if you are talking about atomic nucleus, that this one is the central core of the atom. It's a central core of the atom which contain all the atom positive charge and most of its mass. 99.9% mass क्या है? इसके पास है, न्यूक्लियस के पास। किसका 99.9% एटम है? इसके पास है, न्यूक्लियस। मतलब पावर किसके पास है? न्यूक्लियस हैज द पावर, राइट? सेंट्रल मिनिस्टर वही है, मेरे पास पावर। I am in a silent mode but I have a power. President have all the powers. President के पास सारी पावर, किंग ऑफ द कंट्री, लेकिन मैं सबसे साइलेंट मोड पे हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वे स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू द एटम। इनफैक्ट जो साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे ये 10,000 टाइम्स है, किससे स्मॉलर? 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एन एटम। एटम्स के साइज से 10,000 टाइम्स का। अब 10,000 टाइम्स छोटा है, लेकिन 99.9% ऑफ होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और ये भी बात है कि 99.9% जो मास है न्यूक्लियस की तरफ क्या है? कंसंट्रेटेड contained in like attention is simply like with attention PM की तरफ आपका होगा,
ऐसा नहीं है कि पीएम बहुत उनका वेट बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं। पीएम सबको कंटेन नहीं करता है, सबको क्या करता है, कंसंट्रेशन, अपना कंसंट्रेशन। मतलब जब आप पीएम की बात करते हो नरेंद्र मोदी की, तो आप बहुत सारे लोग उनके साथ हो जाते हैं। वही हाल किसका है, न्यूक्लियस का। हमने कहा कि हम इनके साथ हैं, 99.9% ने कहा कि अब हम इनकी तरफ कंसंट्रेटेड, मीन्स यूर कंसंट्रेटेड। एवरीवन इज हियर बट समवन इज कमिंग, योर कंसंट्रेटेड लेवल इज टोटली देयर। आप यहाँ फिजिकली एग्जिस्टेंस में यहाँ बैठे हो, बट आपका कंसंट्रेशन कहाँ है ये आप जानते हो। नॉट फॉर यू, फॉर एवरीवन, दैट आप कहाँ सोच रहे हो, खाने के बारे में सोच रहे हो, दैट यू वांट टू टेक, क्या जाऊँगा रेस्तरां अच्छे से खाना खाऊंगा, राइट? या अदरवाइज इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एनीवन एल्स, क्लियर, किसी और के बारे में सोच रहे हो गया, क्लियर? तो ये कंसंट्रेशन लेवल को पता है जो न्यूक्लियस के पास है, सारी चीजें कंसंट्रेशन न्यूक्लियस में। वरना 10,000 टाइम छोटा होना एटम से और 99.9% होल मास को कंसंट्रेटेड करना, दोनों में डिफरेंस है। ये तो यहाँ थियरी आ ही नहीं रही। It's very difficult. Like your brain. अगर ये काम करना बंद कर दे तो इंसान की बॉडी का कोई मतलब नहीं। Is it clear? You are IPS when you have a brain. When your brain is working. ठीक है? आप सलमान खान ने जो बोलो वे बना दीजिए। आपके कलर को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन ब्रेन को वॉश नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आपके ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई तो आपकी खूबसूरती, आपका सब कुछ बेकार है, क्योंकि आपका CPU ही वर्क नहीं कर रहा है। वही हाल है यहाँ पर। ये 10,000 टाइम छोटा तो है, ये नर्वस सेल्स हमारी बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन सारी बॉडी का कंसंट्रेशन यहीं पर है। अगर ये नहीं चल रहा है तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हमारी बॉडी वैसी है, हम इवेंट चल नहीं पाएंगे। इज इट क्लियर? राइट और रॉन्ग? राइट। सो इन द सेम, अब आप बोलेंगे कि सर ब्रेन नहीं भी चलता है तो पागल भी चलता है। सर उसका क्या, वे कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में आप जान रहे हैं, राइट? स्कूल की सेंट्रल बॉडी ना हो, स्कूल को डिफिकल्ट में चला रहे, स्कूल चलेगा तो आप आएंगे, पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो उसी तरह वही हालात यहाँ पर वही चीज हो, राइट? सब मिला के कहानी ये है कि आपको ये सेंट्रली याद करना है। ये छोटा होकर भी इसके पास सब कुछ 99.9%। जो न्यूक्लियस है वे बहुत छोटे से स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इसका खुद का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस हैव इट्स ओन स्ट्रक्चर जो कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो याद हो जाएगा। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, एंड मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे दैट वन इज 1.6726 × 10⁻27 kg, राइट? इसकी बात करेंगे हम जब मास। In the same way, if you can talk about the neutron, charge of neutron is 0, neutral charge, and mass of neutron is 1.6750 × 10⁻27 kg. इन दोनों को मिला के जब हम दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियॉन्स। दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के जब हम बोलते हैं दैट वन इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको हम व्हाट कहते हैं? दैट वन इज सिंपली न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन, जो मैं बार बार इसमें यूज करूंगा इस चैप्टर में, फिर आप मुझसे पूछिएगा नहीं न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है। क्लियर? एक वर्ड होता है न्यूक्लाइड्स। जब हम डिफरेंट न्यूक्लियस की बात करते हैं, अलग अलग एटम के अलग अलग न्यूक्लियस की बात करेंगे, यू कैन टॉक अबाउट न्यूक्लाइड्स। क्लियर? बट जब हम बात करते हैं न्यूक्लाइड्स का मतलब अलग अलग एटम के न्यूक्लियस को न्यूक्लाइड्स। इवन कि मैंने बताया कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन जो उसका पेनिट्रेशन पावर होगा वो बहुत हाई होगा। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द न्यूट्रॉन इज वेरी हाई एंड वेरी लो आयोनाइजिंग पावर, और उसके ऊपर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि तो न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड पार्टिकल है, लेकिन उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होगा। पेनिट्रेटिंग पावर विल बी हाई एंड व्हाट यू विल गेट, दैट यू विल गेट दैट पेनिट्रेटिंग पावर इज हाई एंड द आयोनाइजिंग एनर्जी विल बी लो। क्लियर? तो कहाँ से आयोनाइज हो पाएगा जब उसमें कोई चार्ज ही नहीं?
Is it clear? Now we will talk about the atomic number and mass number. Is it clear? मुझे लगता है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो आपका क्लियर हो, लेकिन मैं तो उसके बाद भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम न्यूक्लियर नोटेशंस की बात करते हैं, मैं ब्रीफिंग में बताऊंगा ZX है। You are talking about mass number, you are talking about atomic number। यह आपका क्या है? मास। यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात। यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो प्रोटॉन की वैल्यू कभी चेंज नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चेंज होता है। जब भी हम जेड की बात करेंगे दैट एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट की बात करेंगे, ए की बात करेंगे मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, और एक्स जो है आपका केमिकल सिंबल है इसका एलिमेंट है। जैसे जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसका क्या है? ये जनरल सिंबल है। इज इट क्लियर? सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट इसको, ये जो हम नोटेशंस कर रहे हैं, जो डिनोट कर रहे हैं जेड एक्स से, इस तरह से हमने कोई डिनोशन किया, जेड की कुछ वैल्यू होगी, ए की कुछ वैल्यू और एक्स की कुछ वैल्यू होगी, ऐसा जो नोटेशन देते हैं हम इसको न्यूक्लियर नोटेशंस बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ नोटेशन इज नोन एज न्यूक्लियर नोटेशंस। ठीक है, नाउ वी कैन टॉक अबाउट, जैसे कि हम 7 and 15 की बात करें, एक्स की जगह पे आपका क्या होगा? नाइट्रोजन, जेड यू आर टॉकिंग एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ए, दैट इज 15। इज इट क्लियर? Now if we can talk about 7 and 15, तो अब आपको पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आपको 15 के बाद का पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 15 इक्वल टू 7 प्लस n न्यूट्रॉन, इसमें से ये माइनस होगा, n न्यूट्रॉन इक्वल टू 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 8। आपको तो पता ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होता है? जो मास नंबर है वहां पर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी होती है, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, यू विल गेट, बिकॉज़ यू हैव अ मास नंबर 15। सो इन द सेम वे, ये जब हमने दिस काइंड ऑफ क्राइटेरिया वाज गोइंग ऑन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियर नोटेशंस, ये बहुत सिंपल सा, इसका बहुत आपको यूज करना है, यू हैव टू यूज इन दिस चैप्टर। इसके बाद हमारे पास आया आइसोटोप्स। क्लियर? आइसोटोप्स जो आपने पढ़ा होगा, आइसोटोप्स, बट मैं बताऊंगा आइसोटोप्स की बात। जब आप आइसोटोप्स की बात करते हैं, दैट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट और द एटम्स ऑफ दैट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब व्हाट यू कैन से Z की वैल्यू सेम रहेगी। आइसोटोप्स में क्या होगा? Z की वैल्यू सेम रहेगी, A जो होगा वे क्या होगा? डिफरेंट होगा। एटॉमिक वेट डिफरेंट होगा। एटॉमिक वेट डिफरेंट होने का मतलब क्या होगा? नहीं तो न्यूट्रॉन नहीं तो प्रोटॉन की कोई ना कोई वैल्यू अधिक हो रही है, नहीं तो Z की वैल्यू क्या, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डिफर कर रही है। अब देखते हैं क्या होता है। कार्बन के आइसोटोप्स की बात करेंगे, जैसे कि 6C10, 6C11, 6C12, 6C12, 6C13, 6C14, अगर ऐसा आ रहा है, क्लियर? ये आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। मींस इसका मतलब क्या होगा? 6 will be same, Z is going same, but there is a change in the A, here 10, 11, 12 and 13. Here chemistry में आपने पढ़ा होगा आइसोटोप्स। Here what you are getting is element का आइसोटोप्स, मतलब कार्बन का आइसोटोप्स की बात करेंगे, same number of proton and electron, but number of neutrons is different. क्या डिफर कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपसे कोई पूछेगा, somebody will ask you, how you can say that number of neutrons are different? Number of neutrons are different here. Z will be same, number of proton plus number of Z is number of proton or number of electron। नहीं कि number of proton को शो करा number of electron, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब A की बात करेंगे, A क्या होता है? A number of proton plus number of neutron। Is it clear? यहाँ पे जब 10 है,
10 equal to 6 plus Nn. Is it clear? Nn number of neutron equal to 4. हो जाएगा. यहाँ पर जब आप बात करेंगे 11 equal to 6 plus Nn. Nn equal to 11 minus 6. Number of neutron equal to you are getting 5. इसकी वैल्यू चेंज हो रही है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिंपल है. आइसोटोप्स का मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, बट कौन सी चीज बदलेगी, क्या बदलेगा इसमें? अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू बदल रही है तो हमारे पास उसी एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स मिलेंगे. क्लियर? सबका ऐसा नहीं कि सबका आइसोटोप्स होगा, नहीं, ये क्राइटेरिया होगा तो आइसोटोप होगा. इसी तरह ऑक्सीजन का आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है. मतलब कि सब मिला के ये है कि अगर एटॉमिक मास बदल रहा है, एटॉमिक वेट बदल रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है, तब आपको आइसोटोप्स मिलेंगे. क्लियर? इसी तरीके से जब हम बात करते हैं आइसोबार और आइसोटोन्स की, when you can talk about isobars and isotones, when you can talk about isobar, अलग अलग, when you can talk about, यहाँ पर तो सेम एलिमेंट का था, कार्बन का ही, ऑक्सीजन का ही हम बात करते हैं, बट when you can talk about isobars, यहाँ से isobars, when you can talk about isobars, the atom of different elements के atoms, the atoms of different element which have the same mass but different atomic number. The atoms of different elements, अलग अलग atoms, मतलब different element, जैसे कोई अलग हो जाए, कोई कार्बन है तो कोई ऐसे करके कुछ हो जाए. The atoms of different elements which have the same mass number, जिनका mass number सेम होगा but atomic number जो होगा वो क्या होगा, different होगा. ऐसे को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे. जैसे हम क्या लें, 11 and 8 23 and if you can take 12 mg 20, ये आइसोबार्स है. यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है. वहां पर तो सेम था, कार्बन की बात तो कार्बन की बात है. यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए. x की वैल्यू दोनों में डिफर करेगी. उसके बाद z की भी वैल्यू डिफर करेगी. सेम क्या रहेगा, a की, मतलब a will be same, z will be, लिख लीजिए का लिखना also different, ये पोटेंशियल है, और x will be different, x भी डिफरेंट होगा, z भी डिफरेंट होगा, और a क्या होगा, सेम होगा. लर्न करने का सबसे इजी आइसोबार्स. अगर z x से पता है बस उसमें क्या करना है, z वैल्यू x वैल्यू को डिफर कर दीजिए, a की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, सेम हो रही है. इसको हम बोलेंगे आइसोबार्स. इसके बाद मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. अब इसके बाद आ रहा है आपको आइसोटोन्स. When you can talk about isotones, isotones are the nuclei which have the same number of neutron, जिसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. दैट न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम होगी. अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, x भी डिफरेंट होगा, z भी डिफरेंट होगा, z will be different and a will also different. तीनों क्या करेंगे, डिफरेंट होगा, बट सेम क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे ये क्या होंगे, ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स को. जैसे एग्जांपल लिया जाए 17Cl39 19K 39. क्लियर? 37, दिस वन इज 37. यहाँ पर देखें, लेट टू चेक इट.
A equal to NP plus NR. 37 equal to NP, 70 plus NR. NR equal to 37 minus 70. NR equal to क्या होगा? 0. 3 minus 1, that one is 20. Number of electron कितने होंगे? 20. इसमें. Now we can talk about this one. That one is 39 equal to 19 plus NR. NR equal to 39 minus 19. NR equal to 20. You are getting both have the same number of neutron. Clear? Where X is different, Z is different, A is different, but number of neutron is coming same. मतलब ये हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा मास नंबर से, और तब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? आइसोटोप. They are in the category of the isotope. Simple method to log this. No need of any other thing. If you have a Z-axis, you can simply write about isotopes, isotopes, isobars. Clear? Get it out? Now we will talk about nuclear mass. Clear? Nuclear mass. When you can talk about nuclear mass, the total mass of nucleons, means proton है, mass of proton and mass of neutrons. जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनका जो मास है, जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मास. सिंपल. Nuclear mass equal to mass of proton plus mass of protons, mass of neutrons. मतलब जितने भी प्रोटॉन है और जितने भी न्यूट्रॉन है, उन टोटल का मास जो है, एक मास किसका? एक प्रोटॉन का नहीं, जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है. And what about the number of neutron present? When you can take the total number, total summation, that mass of proton plus mass of neutron is equal to nuclear mass. किसके इक्वल होगा? nuclear mass के इक्वल होगा. Clear? So whenever you are talking about the SI unit of mass, SI unit of mass is kg. Everybody clear? जब एटॉमिक और न्यूक्लियर मास की बात करते हैं, ये बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है. इसको जो हम मेजर करते हैं, इसकी जो यूनिट लेते हैं, AMU लेते हैं. दैट वन इज एटॉमिक मास यूनिट. व्हाट वी आर टेकिंग? एटॉमिक मास यूनिट. इसको हम बोलते हैं A.M.U. क्लियर? इसके क्या बोलते हैं? दैट वन इज सिंपली नोन एज AMU, A.M.U. जो 1 AMU की वैल्यू होती है, दैट वन, व्हेन यू कैन टॉक अबाउट 1 AMU, इसकी जो वैल्यू होती है 1/12 into mass of 1/6C12. मास ऑफ 1/6C12 का मतलब क्या हुआ? एक एलिमेंट 6C12, क्योंकि इसके आइसोटोप्स भी तो है. अब 6C12 की बात करें, उतना जो मास है 6C12 का, एक 6C12 का जितना मास होगा, उसको अगर 12 से डिवाइड कर दिया जाए, जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 AMU. इसके इक्वल आएगी 1 AMU. इज इट क्लियर? आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 × 10⁻23. क्लियर? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 × 10⁻23. क्लियर? तो अब मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 एटम ऑफ 6C12 करेंगे, दैट वन इज 12 ग्राम. अब निकालते हैं इसको. केमिस्ट्री पढ़े हैं तो थोड़ा केमिस्ट्री का यूज करते हैं. कितने लोगों का एवोगैड्रो नंबर क्लियर है?
अब मास निकालना है किसका 6 से 12। अब 6 से 12 का निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.023 into 10 power 23। क्लियर। अब मास ऑफ 6.023 into 10 power 23 एटम ऑफ 6 से 12 करेंगे, दैट वन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इज इट क्लियर? दैट वन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसकी बात करेंगे हम जब मास ऑफ 6.023 into 10 power 23 atoms। क्लियर। मास of 6.023 into 10 power 23 of 6C12। Clear? Getting my point? Atoms of 6C12। Avogadro number का यूज कब करते हैं? When we are using the Avogadro number। हमारे पास तो विजिबिलिटी नहीं है कि what will be the mass of 1, what is the mass of 2, तो हमें एक assumptions लेते हैं। क्लियर? तो mass of 6.023 into 10 power 23 of 6C12 equal to 12 kg ग्राम हमने ले लिया। जब आपने 12 ग्राम ले लिया that one, तो 1 एटम का निकालना है, बिकॉज वहाँ पर तो क्या लिखा है 1/12 of 1 एटम, इसका 6 से 12। तो 1 एटम का निकालना है तो फॉर 1 एटम what we will do 12 ग्राम divided by 6.023 into 10 power 23 for 1 atom। और 1 atom का निकालना है that means 12 ग्राम divided by 6.023 into 10 power 23। Is it clear? इसे क्या करेंगे डिवाइड करते हैं। Is it clear? When you can divide it you will get the value something। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 एटम का इतना हो रहा है, इस 1 एटम का 6C12। अगर 1 AMU की बात करते हैं तो 1 AMU इक्वल टू 1/12 इसका इस पूरे, that one is 12 divided by 6.023 into 10 power 23। this one cancel out with this one, 1 divided by 6.023। is it clear? This one cancel out with this one, 1 divided by 6.023 into 10 power 23। और इसको जब आप करेंगे divide, and when you can divide it by calculator or by hand you will get the value will be 1.66 into 10 power minus 27 kg। that one is 1.6 average to 10 power minus 27 kg। ये आप लिख आएंगे that one is value of 1 atom। is it clear? Read out। Concept of chemistry total। Now come on the point। We have to go for relationship between AMO and MEV। AMO and MEV। Relation between AMO and MEV। Clear? AMO और MEV में relationship। Clear? When you can talk about Einstein, according to Einstein, mass and energy are equivalent so that one can be converted into the other। एक जो है दूसरे में क्या हो जाएगा कन्वर्टेड। जब आइंस्टीन इक्वेशन की बात करेंगे that one is E equal to mc square। E equal to mc square। Clear? So we can have energy equivalent to the mass of 1 atom। They have to go for the relationship between the AMO and MEV। E equal to mc square। When you can take m is equal to 1 AMO। अगर m की वैल्यू क्या ले ली जाए 1 AMO ले ली जाए तो 1 AMO का मतलब क्या होगा, अगर उसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1.67 into 10 power minus 27 kg। क्लियर? m equal to 1 AMU and one is simply equal to 1.67 into 10 power minus 27 kg। No doubt at all?
Now we have the value of a c. The speed of light in the vacuum 3 into 10 power 8 meter per second. c equal to 3 into 10 power 8 meter per second. आपने किसकी वैल्यू ले ली? c की वैल्यू. Now we have to go for a value of a e. E equal to m. M value is 1.67 into 10 power minus 27 kg multiply with 3 into 10 power 8 meter per second multiply with 3 into 10 power 8 meter per second. और इसको डायरेक्टली इसका भैया. Now if you can go for this term, you will get the value of e. आपको किसकी वैल्यू मिल रही है? e की. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगा. Because e is the energy when mass is multiplied with the speed of light square. Mass changes into the energy. E equal to mc square. यही तो रिलेशनशिप ये शो करता है, right? So e equal to mc square. So after that you will get, after the solution you will get the value of e 1.49 into 10 power. That you are getting 10 power minus 10 joule. इतनी एनर्जी अब आपको मिल रही है जब आप m की वैल्यू 1 AMU लेते हैं. That one is simply equal to 1.67 into 10 power minus 27 kg. Now we have to go for 1 MeV, right? 1 MeV. क्योंकि we have to go for a relationship between both. Clear? दोनों के बीच का हमें रिलेशनशिप निकालना. E की वैल्यू तो निकल गई. That one is 1.49 into 10 power minus 10 joule. If the value is 1.49 into 10 power minus 10 joule, so if you can talk about 1 MeV, that one is 1 MeV equal to 1.6 into 10 power minus 13 joule. Clear? 1.6 into 10 power minus 13 joule. ये होता है कितना? 1 MeV के इक्वल. 1 MeV इक्वल. Clear? अब आपको क्या करना है? यू हैव टू कन्वर्ट. क्लियर? तो आप दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे, when you can go for the ratio of this one and this one, both are energy. This one is also the energy and this one is also the energy. When you can take the ratio 1.49 into 10 power minus 10 divided by 1.6 into 10 power minus 30, जब आप दोनों का क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे. क्लियर? सो जब दोनों का रेशियो निकालेंगे, when you can go for a ratio, that you will get 931.5 MeV. 931.5 MeV. देखिए अगर if you can go for E, that one is 1.49 into 10 power minus 10 joule divided by 1.6 into 10 power minus 13 joule. ये आपने निकाला. आपको जो E, अब आपको ये MeV जब आप बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको करेक्शंस के बाद वैल्यू मिल रहा है, that one is 931.5 MeV मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 931.5 MeV. Is it clear? So this one is showing that 1 AMU equal to 931.5 MeV. Is it clear? Getting my point? Any doubt? 1 AMU equal to 1.67 into 10 power minus 27 kg. आपने m की वैल्यू ले ली. C की वैल्यू 3 into 10 power 8 meter per second. You have taken. E equal to mc square आपने रख दिया. 1 MeV की वैल्यू आपको पता है. That one is 1.6 into 10 power minus 13 joule. Clear? आपको पहले से पता है. 1 MeV equal to. E आपने रेशियो लिया 1.49 into 10 power minus 10. This one divided by this one. This value is greater, this value is smaller. Comparison to this one. दोनों का रेशियो निकाला. रेशियो निकालने के बाद आपको MeV कितना मिला? 931.5 MeV मिला, जो 1 AMU की क्या है? इक्वल. 1 AMU equal to that one is 931.5 MeV. Clear? So in nuclear physics, जो मास हम often लेते हैं, often we are taking the mass into MeV. Clear? वहाँ पे आप किसका यूज करते हैं? 931.5 MeV का यूज करते हैं. Clear? So this one is totally about the nuclei, and tomorrow we will discuss about size of nucleus and nuclear density. Thank you class.